ہاں اس کا آپ ترجمہ کر جی یہ حدیث ہاں انا قاسم واللہ یؤتی جی بانٹنے والے ہیں. جی جی اس حدیث کی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ حدیث شروع ہوتی ہے جی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی من یرید اللہ بہ خیرا جی یفقہہ فی الدین. جی اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ جی ملائکہ ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے اندر جی سمجھ عطا فرماتا ہے. جی ہاں ہاں واللہ یؤتی جی کیا دیتا ہے اللہ؟ جی فرمائیے. اب تو غیب کا صیغہ نا؟ واللہ ہاں غیب کا صیغہ ہے. پیچھے کیا کس چیز کا ذکر ہے؟ واللہ یعطی اور اللہ عطا کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا عطا کرتا ہے؟ کیا عطا کرتا ہے؟ کون سی بات علم کے علاوہ بھی نہیں ایک چیز سمجھ کے علاوہ بھی اللہ رب بات العزت جاری ہر ہے. کچھ عطا فرماتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں ہے نا ہم نے تو عبادت دیکھنی ہے نا پیچھے تو کیا آپ ذکر دیکھیے نا اس کو پڑھیے نا آپ. جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے علم کا ذکر ہو رہا ہاں علم کا ذکر ہے. یہ صحیح ہے. اللہ یؤتی اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ علم دیتے ہیں. اللہ کے نبی آگے امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہاں ہاں بولیے بول دیجیے آپ. یہ تو میں حدیث میں نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ علم کس بات پہ چل رہی ہے. حدیث فقہ پہ چل رہی ہے نا. اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اب یہ ٹاپک چل رہا ہے جی. اب جو آپ ٹاپک اپنی طرف سے نکال رہے ہیں اس کے لیے دلیل نہیں نہیں اس کے لیے ہے نا اس کی تشریح میں ملا علی قاری نے بھی بیان نہیں ایک منٹ اس کی تشریح ایک چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ فقط حدیث پاک کے الفاظ سے اگر ہر انسان استدلال کرنے لگے اسی طرح حضرت سفیان عیینہ نے فرمایا کہ اگر حدیث پاک سے فقط استدلال کرنا شروع کر دے تو انسان گمراہ ہو جائے گا. ہاں فقط جی جی حضرت سفیان نہیں آپ جو ہے نا عام آدمی جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہوتا ہے. ہم عام فہم انسان فقط ہر حدیث کیونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو معمول بھی ہی ہوتی ہے اور کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو معمول بھی نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ یہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ حدیث ایسی ہے جو معمول بھی ہوتی ہے کچھ حدیث ایسی ہوتی ہے جو معمول بھی نہیں ہوتی ہے. کہاں سے یہ حدیث پاک جو معمول بھی میں سے ہے. کیا مطلب جی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود میرے آقا علیہ السلام نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے خزانے عطا کیے ہیں. سمجھیے اب ملا علی قاری کی تشریح پڑھیں نا. میں دے رہا ہوں مرقات المفاتیح. آپ مرقات اٹھائیے مرقات شرح مشکات اٹھائیے اسی طریقے سے تفسیر کبیر اٹھائیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آپ کو اس حدیث کی تشریح دے رہا ہوں. جی آپ نے فرمایا جی فلانے نے بتایا. نہیں میں لوگوں کی باتیں نہیں سننا چاہتا ہوں. آپ جس کو میں ریفرنس دے رہا ہوں نا میں ان کو سب سے پہلی چیز حدیث دے رہا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو حدیث کہ اللہ کے پیارے حدیث جلد اول بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور یہی حدیث پاک مشکات شریف میں بیان کیا گیا. علامہ خطیب تبریزی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. دو جگہ موجود ہے یہی جو میں نے بیان کیا کہ انا قاسم واللہ یؤتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اس کی تشریح میں جی اللہ تعالیٰ نے سن لیجیے میری بات. میں آپ کو نہیں پتا ہے آپ نے میں بتا رہا ہوں آپ جس طریقے سے علم آپ بتا رہے ہیں بولنے دو نا ان کو بولنے دو. میری بھی بات بولنے دیں. آپ کسی بولنے دو نہیں ہم بھی بولنے والے ہیں. چھوڑ کے آدھی حدیث نہیں ہے اس کی تشریح. آپ ایک چیز مجھے آپ بتائیں ایک چیز میں آپ سے سوال کرنا بحث نہیں کر رہا ہوں. ایک چیز آپ مجھے بتائیں حضور کے روزے کے سامنے نہیں آپ آدھی حدیث چھوڑ کے آدھی پیش کر رہا ہوں آپ سے. پوری بتاؤ پوری جو بات جہاں پہ سمجھنے والی آئی اس کو آپ میں آپ کرتے کو ایک نہیں. بات پیش کر رہا ہوں. دیکھو پورا کانٹیکسٹ پورا بتاؤ. بات کر دی میں نے آپ کو عربی سنائی اس حدیث. آپ خاموش رہیں گے آپ خاموش میں نے رہیں آپ کو یار پورا ریفرنس ہم بھی تو سیکھنا ہے نا یہاں پر. خاموش رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ڈکٹیٹر ہو یہاں پر ہم بھی سیکھنا ہے. آپ دو الفاظ ڈکٹیٹر نہ بنو نا آپ خاموش کر رہے لوگوں حدیث کو. کے دو الفاظ ڈکٹیٹر نہ بنو یہاں پر. ہم بھی سیکھنا ہے یہاں پر اس لیے پوچھ رہا ہوں مجھے ریفرنس چاہیے. ایسے نہ بولو نا یار طریقے سے بات کرو. آرام سے بات کرو. یہ کہہ رہے ہیں آرام سے بات. آرام سے بات کرو بھائی. حدیث کے بہت ہی آہستہ سرکار گنبد کے پاس کھڑے ہیں. بہت ہی بہت آہستہ آرام سے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہم نے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم اپنا استدلال یا اپنے آپ کو سچ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی حدیث کا پہلا حصہ بھی چھوڑ دیتے ہیں حدیث کا دوسرا حصہ بھی چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں سے ایک لفظ نکال کے کہتے ہیں یہ ہماری حجت ہے جی. یہ دیکھو
जी हाँ अब उसमें वादे नहीं होता है भी क्या है क्या नहीं है जी, बस उस पर फिर ये क्या कहते हैं हमारी तशरीह है जी, हमारे उलमा की तशरीह है, पुराने शेख ने इस तरह कहा है, पुराने आलिम ने इस तरह कहा है जी, हम इसकी तशरीह में हम ये करेंगे। भैया आप लोग समझदार हैं माशाल्लाह। जी हाँ बोलिए। अल्लाह ताला ज़हन दिया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुकम्मल हदीस तो पढ़ें कि हदीस के अंदर टॉपिक क्या चल रहा है। जी जी हाँ इस बोलिए। बात पे ये हदीस चल रही है कि खजाने दे, वो कह रहे इल्म दे, बस इतना फर्क है। एक क्या बात चल रही है, वो बात चल रही है, हमारी बात उसी के बारे में गैर किसी को बता रहे हैं कि ये उसी के बारे में चल रही है बात। हाँ हाँ तो हम उस बात को छोड़ के अपनी तरफ से कहेंगे नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये तो है ये, लेकिन इसमें यही चीज ये भी चीज़ हम दाखिल कर सकते हैं, बोलिए। ये हम नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक बोलिए। है ना। हाँ उलमा कराम ने जितनी भी इस तरह की हदीसें आती हैं, दो माना बयान, जी एक माना ये जो मैंने आपको बयान किया, हाँ दूसरा माना उलमा ये बयान करते हैं कि इससे मुराद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत हासिल करते थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत हासिल करते तो उनसे मुराद वो माले गनीमत है कि उनमें से एक हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के लिए होता है और 4 हिस्से जो है ना वो लोगों में तकसीम। आप जो माली गनीमत की बात कर रहे हैं, सुन लो यार, एक मिनट मेरे बीच खत्म में। कर लूंगा हाँ बात, बोलिए बोलिए। ठीक है ना। ये जितनी भी शुरुआत हैं हाँ पुरानी, उसकी उन सब ने यही माना बयान किया है। कौन कौन मिसाल के तौर पर नाम बता दीजिए। सारी शुरुआत सारी शुरुआत हम पढ़ते हैं। ये आप जो मौजूदा पेश एक नाम रेफरेंस दे, जैसे भाई ने कहा रेफरेंस दीजिए मुझे इसका। दे दो आप। आप रेफरेंस दो, उसमें से नाम बताइए आप कौन सी किताब का हवाला दे रहे फतुल हैं। बारी देखने सबसे पहले फतुल बारी, बुखारी का हदीस है, हाँ बुखारी में फतुल बारी में हाफिज इब्न हजर असक़लानी ने इसको बयान नहीं फरमाया, आप गलत कह रहे हैं। क्या नहीं बयान किया? आप जो कह रहे हैं माली गनीमत इस हदीस की तशरीह कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं पढ़ा हूँ उस हदीस को। क्या? फतुल बारी में जो आप पेश कर रहे हैं हाफिज इब्न हजर असक़लानी के, जो 90वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं, जी जी उन्होंने बयान नहीं किया, आप गलत पेश कर रहे हैं। 9वीं सदी से 8वीं सदी हिजरी के दरमियान के हैं। हाफिज किसकी बात कर रहे हैं? फतुल बारी हाफिज इब्न हजर असक़लानी की। आप पेश कीजिए ना, नहीं है हदीस वहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ पेश कीजिए, नहीं है वो हदीस। उसके अलावा जितनी भी किताबों में हदीसें आती हैं, जितनी ने उसकी नाम शुरुआत बताइए आप। सात सित्ता की मुकम्मल शुरुआत सियासत तक नहीं, आप जहाँ नाम पर भी पेश हदीस कीजिए। आती है। मैं वहाँ नहीं, अभी रेफरेंस दीजिए आप। आपने कहा सियासत रेफरेंस। का बता रहा हूँ। सियासत में कौन किसने जहाँ तशरीह बयान किया? जिस किताब में भी ये हदीस आती है, एक नाम आप बताएं। क्या बताता अभी तो फतुल बारी आपने गलत बताया, क्या पहली बताया? चीज। अब फतुल दूसरा बारी नाम में बता, नहीं गलत लिखा हुआ। नहीं है। मैं आपको दिखाता हाँ मैं देखूंगा, मेरे पास खुद भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक आपने गलत रेफरेंस दिया, हुजूर के रोजे के सामने आप गलत पेश कर रहे आपको हैं। दिखाऊंगा मेरे भाई। क्या हाँ तो जी दे दें। हाँ एक दूसरा आपने देखना चाहते हैं ना? मेरे पास है, मैं किताब एक मिनट आप हुजूर के रोजे के सामने जितने भी लोग दूसरा रेफरेंस, आपने सबका नाम लिया है मेरे भाई। भाई यार एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपने सबका नाम लिया, आप रेफरेंस दो ना, बात खत्म होगी तो बोलेंगे। इनको बोलना रेफरेंस तो दो ना। बता रहा है कि रेफरेंस आप जिस गलत दे रहे हो, फायदा क्या? हाँ तो रेफरेंस दो ना। हदीस की किताब में ये हदीस आई है, जिस हदीस की शरह में लोगों ने तशरीह में कौन, मेरा अल्लाह देता है। तशरीह कौन, आप जितने किसने, इन्होंने कहा रेफरेंस दीजिए, आप रेफरेंस दीजिए ना। आप मुझे मत बताइए, आप हुजूर के रोज़े के सामने रह करके आप बात कर रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम का हवाला दे रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हाफिज हजरत असक़लानी ने इसकी वजाहत की। अवलन तो आपने झूठ कहा हुजूर के रोज़े के सामने, और आपने दूसरी बात ये कही कि सारे मुहद्दिसीन ने, सारे मुहद्दिसीन में किस किस ने तशरीह बयान की, एक का तो नाम बताया आप। दिखाऊंगा नहीं, अभी आपने सबका नाम ले लिया, मैं इसलिए नाम नेट में दिखाए। आप पहले नाम बताइए, नाम बताइए। नहीं ज़हन में होगा उनके। तो आप कैसे कह दिए कि सब मैंने सारा है? मुताला और किया सब में कौन कौन है? मैं शख्सियात को याद नहीं करता। शख्सियत को कैसे याद नहीं करते? आज जिनकी जरा जिनकी तादील हमारे भाई, एक मिनट, मेरा जिनकी मकसद जरा ये है हदीस को याद करना है। मेरी बात एक चीज मैं आपसे पूछती मेरी जी बात सुनो। मेरा मकसद ये है हदीस को याद करना, हाँ क्योंकि ये हदीस है, जी ठीक है ना। हाँ मैं हदीसों को फॉलो करता हूँ। जी। अब लोगों ने नीचे क्या, किसने क्या कुछ कहा, किसने क्या कुछ कहा, मैं ये याद नहीं करता। अच्छा कुरान की समझ और हदीस के लिए फहम की भी जरूरत एक- है। काम की जरूरत है, लेकिन नाम याद अच्छा रखना ठीक है, मैं लाज़मी आपसे एक सवाल करता हूँ मुतवर साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ। फहम समझिए, उसको फहम करें, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लाज़मी नहीं कि हम उसका समझते नाम भी याद करो। जी जी। मैंने हदीसें आपको समझी, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को छोड़कर हदीसों को फॉलो करो। हम हदीस, अच्छा आप हदीस को फॉलो करते हाँ हैं, जी। ठीक है, हदीस पर अमल करते हैं, ठीक है। हाँ जी। देखिए सब ने कहे आप इस हदीस, ये जो लाल ओढ़े हुए हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कब ओढ़ा है? एक हदीस मुझे बता दीजिए, सियासत की एक हदीस आप मुझे बताइए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस रुमाल को आपने इस्तेमाल फरमाया। एक हदीस मुझे बताइए। एक मिनट आप मत बोलिए, कोई भी ना बोले, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ। ये बताएं कि ये
पहनना इबादत है? नहीं नहीं, आप हुजूर की हदीस पर अमल करते हैं। मेरे आका देखिए, अभी आपने इनसे कहा, मेरे साथी कहाँ गए? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। क्या ये रुमाल पहनना इबादत है जी? हुजूर अलैहिस्सलाम के लिबास नबी का काम, एक मिनट, अब ये गलत इबादत की बात मत कीजिए। नबी का काम हाथ लगाना इबादत है? नबी के रोज़े को हाथ लगाना इबादत है? क्यों मना करते हैं? क्यों मना करते हैं? नहीं क्यों मना करते हैं? नबी का काम जो है ना, इबादत नहीं है। नबी का हर फेल हमारे लिए सुन्नत है। लेकिन ये फेल जो है ना, आप इमामी वाली बात, ये अबू जहल नहीं पहना चाहते। ये आप ये लाल रुमाल नहीं, आप वो लिबास क्यों नहीं पहनते हैं जो मेरे आका ने अमामा शरीफ ये आपने क्यों नहीं लिबास पहना? क्या ये नबी ने लिबास पहना? ये मेरे आका ने एक मिनट क्या ये लिबास, एक मिनट रुक जाइए। क्या ये लिबास अल्लाह के नबी ने पहना? बताइए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इस्लामी लिबास में रखे। आप जो पहनते ये हैं सवाल दें। ठंड ढांपने के लिए ठीक है, पैंट तो नहीं पहनी है ये। पैंट तो नहीं है ना, पैंट तो नहीं है ना। पैंट तो नहीं है ना, ये अल्लाह बुजुर्गान ने दिन इसको पहनते हैं। आपने कहा ना शमा के अलग नबी ने पहना है, लेकिन ये हुजूर सवाल किया ना, ये सवाल क्या ये लिबास अल्लाह के नबी ने पहले पहना इसका है? जवाब दे, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। पहले इसका जवाब दे। मैं तो इसको इबादत आप हुजूर समझता ही नहीं। नहीं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जो दर्जा आता है नबी पाक का काम जो है पेश कर हुजूर के सामने। इमामा शरीफ पहनना क्या ये सुन्नत अल्लाह है। के नबी ने पहना है? आप ये बताएं, आप ये इमामा पहनना सुन्नत नबी में है। सुन्नत है, अमामा हुजूर की सुन्नत, सहाबा किराम ने भी इमामा पहना। अमामा हुजूर की सुन्नत है। नहीं नहीं, बनाने नहीं